Dear friends, I hope all of you are safe and staying at home only. Dear friends, I Prashant Lakhani welcomes you once again in the world of TYBCom Economics, Semester 5, Module 1, Chapter 2, Part 2, and that is Social Infrastructure, which includes education, health, and family welfare. In our last session only, we have discussed some of the points. Okay, due to privatization in the field of education, health, and family welfare, so many different kinds of services are provided to the people to improve their standard of living. But all these services became so expensive after the new economic policy introduced in the year 1991, and because of which these types of services are unaffordable to the poor people of the society. Then we have one question: if it is unaffordable to the poor people of the society, why we need social infrastructure in our economy? Today we are going to discuss the answer of that question, and that is importance of social infrastructure. See, we have one single word: importance. If they are asking the word significance, role, need, objectives, importance, out of these many words, whatever word they are using in that question, the answer will remain same. That is importance of social infrastructure. I repeat: role, need, importance, significance, objectives, purposes, why we need social infrastructure. And I repeat myself, social infrastructure basically includes only three things: education, health, and family welfare, that is well-being of the society, which we cannot purchase with the help of money. In my last lecture also I told you कि पैसा देकर आप बुक्स खरीद सकते हो, नॉलेज नहीं. पैसा देकर आप मेडिसिन खरीद सकते हो, हेल्थ नहीं. हम अपने फैमिली की भलाई जो है उसको पैसे से खरीद नहीं सकते. वी कैन परचेज वेल्थ, we cannot enjoy welfare with the help of money. So that is social infrastructure. So let's begin with importance of social infrastructure. First point is human development. Without social infrastructure, human development is not possible to achieve. क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम कि अगर आप अपनी कंट्री के लोगों में ह्यूमन डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. द रीजन इज इट इज अ composite of statistics of life expectancy, education, and per capita income. Friends, it's very interesting point to understand. When we use the word human development, so human development of the society basically depends on three factors. That is life expectancy. देखिए, अपनी कंट्री के लोग कितना लंबा जी रहे हैं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. वो कितना अच्छा जी पा रहे हैं. वो 90 साल जिए लेकिन बीमारी से मरे, उससे बेटर है कि वो 70 ईयर्स जिए लेकिन अच्छा जिए, एंड मोमेंट तक काम करते हुए मरे. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. नेक्स्ट वन इज एजुकेशन. अपनी कंट्री के लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जहाँ पे एटलीस्ट उनको एक लैंग्वेज में बोलना लिखना पढ़ना आता हो. एंड पर कैपिटा इनकम, मतलब एवरी सिंगल इंडिविजुअल ऑफ आवर कंट्री हाउ मच ही कैन अर्न पर मंथ टू स्पेंड दैट अमाउंट ऑन हिमसेल्फ. खुद की खुशी से, खुद खुश नहीं, खुद की खुशी से खुद के ऊपर, खुद की जेब से हम खर्च कर पाए टू सेटिस्फाई आवर सेल्फ. दैट इज पर कैपिटा इनकम. तो जिस कंट्री के लोगों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा हो, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो और उनका पर कैपिटा इनकम अच्छा हो, तो ये मान लिया जाएगा कि उस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है. इंडिया वॉज रैंक 131 इन 2016 ईयर,
जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का एक रिपोर्ट निकाला गया फ्रेंड्स। 188 कंट्रीज का सर्वे वहाँ पे हुआ था, जहाँ पे इंडिया का रैंक 131 था। आई नो देयर इज वन डाउट कि सर ये गिनते कैसे होंगे। हमने ऊपर 3 फैक्टर गिने, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। किसी भी कंट्री के लोगों में 65 से ऊपर लंबा जी पाना कितने लोगों के लिए पॉसिबल है, 85 अबोव कितना लोग जी पाते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं और नॉर्मली कंट्री में हर कोई एक साल में अपने ऊपर अपनी मर्जी से $100 से ज़्यादा खर्च कर पाए, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम। ये तीनों का एवरेज निकाला जाता है। ये तीनों के नंबर फाइंड आउट करके सर्वे करके तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 3 किया जाता है। वहाँ से अपने को मिलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ओके फ्रेंड्स, दुनिया की 188 कंट्रीज का सर्वे ये हुआ था, जहाँ पे इंडिया को रैंक मिला 131। अब यहाँ पे भी एक चीज़ समझने जैसी है, हाउ डू वी नो कि हम 131 रैंक पर है। तो अपना जो HD रिपोर्ट था उसका जो स्कोर आया इट वॉज 0.624। ओके, एंड दैट्स वाई वी वर प्लेस्ड इन मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल। फ्रेंड्स, एक्चुअली स्पीकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट निकलता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट निकलता है उसके 3 हिस्से होते हैं। दैट इज हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट। हाई लेवल में अगर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स एवरेज जो है अगर वो 0.8 के अबोव होता है, 0.8 या उससे अबोव, तो इट वुड बी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फ्रेंड्स, नॉर्वे, कनाडा, जापान, USA ये सब हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर अपना इंडेक्स का वैल्यू एवरेज जो है इफ़ इट कम्स बिटवीन 0.8 to 0.5, या आप ऐसा बोलते हैं 0.5 to 0.8 के बीच में अगर हम आते हैं तो इट विल बी मीडियम लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फ्रेंड्स, आवर स्कोर इज 0.624, so it is between 0.5 to 0.8. That's why we were placed in the year of 2016, we were placed okay in medium human development level, जहाँ पे इंडिया, श्रीलंका, चाइना ये सब डेवलपिंग कंट्रीज आती है। ओके, अगर अपना एवरेज आंसर 0.5 से भी नीचे चले जाए तो वो बन जाएगा लो ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल। फ्रेंड्स, जहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान ये सब कंट्री आती है। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है अगर हमें वो समझना भी है तो वी हैव टू कैलकुलेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। और ये सभी चीज़ें जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड है। तो इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री के अपनी कंट्री के लोग कितना तरक्की पे है, तो फॉर दैट पर्पज वी नीड कैलकुलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच इज़ बेस्ड ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे ये समझ में आ गया कि वी आर रैंकिंग 131 इन द ईयर 2016, जहाँ पे हम मीडियम लेवल पे थे, क्योंकि अपना जो स्कोर था इट वॉज 0.624। दैट वॉज आवर फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट इज economic growth. A productive workforce can make better utilization of resources and contribute to economic growth. If education and skill development is available to all the people, either free or at low cost, it will help increase देयर प्रोडक्टिविटी एट वर्क। फ्रेंड्स, अगर मैं इसका सटीक एग्जाम्पल आपको समझा पाऊँ, इन द ईयर ऑफ 1945, 6 अगस्त, 9 अगस्त, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब का अटैक किया, न्यूक्लियर बॉम्ब। ओके, दुनिया ने ये बोल दिया कि अब जापान अगले 50 सालों तक पीछे हो गया, डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इन जापान। अमेरिका ने वहाँ तक चैलेंज मार दिया था कि अगले 50 सालों तक नागासाकी हिरोशिमा में घास का एक तिनका तक नहीं उगेगा। बट बिलीव मी माय फ्रेंड्स,
इन द ईयर ऑफ 1992, 1945 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, 50 साल पूरे हो रहे थे 1995 में, बट इन द ईयर ऑफ 1992 जापान के हिरोशिमा नागासाकी में फुटबॉल के इंटरनेशनल लेवल के मैच हो रहे थे फ्रेंड्स। और हिरोशिमा नागासाकी के स्टेडियम उन्होंने, सबको पता होगा कि फुटबॉल खेलने के लिए जो हमें ग्रासलैंड चाहिए, सोचिए घास का एक तिनका नहीं उगने वाला था, वहाँ पे ग्रासलैंड उस लेवल तक उगाया था। हाउ इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन लेवल ऑफ जापानीज पीपल। उनका जो प्रोडक्टिविटी है, काम करने के जो तरीके सलीके हैं, वो काफ़ी एफिशिएंटली बढ़ाए गए विद द हेल्प ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। सॉरी फ्रेंड्स, द फैक्ट इज, अपने यहाँ पे 9th का बच्चा रजनीकांत का रोबोट मूवी देख के खुश होता है। जापान में 9th का बच्चा साइंस की लेबोरेटरी में रोबोट खुद बनाता है और उसको 20 मार्क का उसका प्रोजेक्ट होता है। तो एजुकेशन लेवल को उस लेवल पे लाया गया उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए, एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट लो कॉस्ट। इवन इजराइल, फ्रेंड्स, इजराइल बंजर जमीन का कंट्री, पर आज वो प्रोडक्टिविटी में इतना आगे निकल चुका है। इवन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इजराइल बंजर जमीन, डेजर्ट एरिया होने के बावजूद वो हाफूस उगाते हैं, आम जो इंडिया में उगता है वैसा वाला। तो दे हैव इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी विद द हेल्प ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। सो फॉर ऑल दैट पर्पजेज ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंट्री में जो एजुकेशन है, या तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, वो बहुत या तो बहुत कम खर्चे में अवेलेबल हो, सो दैट इवन पुअर पीपल कैन अफोर्ड हायर एजुकेशन। एक और कंट्री का अगर मैं नाम दे पाऊँ आपको, फिलीपींस। फ्रेंड्स, वहाँ पे टोटल जो एजुकेशन है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्रॉम नर्सरी जूनियर के आप जो भी बोले टिल हायर एजुकेशन इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूल कॉलेज है ही नहीं, ऑल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, सब कुछ गवर्नमेंट का। एंड देन टू बेस्ट एजुकेशन। ओके, तो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर पीपल to produce more things in our country for GDP purpose, we should need social infrastructure development. That was our second point, economic growth. Our third point is, that is positive externalities. First of all, let me clarify, यहाँ पे जब हम वर्ड यूज करते हैं एक्सटर्नलिटीज, तो हाउ डू वी बिहेव externally in society. Education, healthcare and family welfare services provided through social infrastructure have positive externalities. अगर कोई बोले कि why we need social infrastructure in any country, जब आपकी कंट्री के लोगों को बेस्ट एजुकेशन कम प्राइस में मिलता हो, बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती हो, वो भी एट लोअर कॉस्ट, और फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम्स चल रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की या टीबी की दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपका जो बिहेवियर सोसाइटी में होता है, किसी का माल चोरी कर लूँ, लूटफाट कर लूँ, किसी को उल्लू बना के चीट कर लूँ, ये सब सोसाइटी के लोगों में सोच नहीं आती, क्योंकि आपकी जो बेसिक नेसेसिटी है एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है या बहुत कम खर्चे में प्रोवाइड कर रही है। सॉरी, हम बहुत बार ऐसी बातें करते हैं कि इंग्लैंड में देखिए आप, लोग कितने प्रैक्टिकल, ओके, और कितने हेल्पफुल होते हैं। वाई दे आर दैट मच हेल्पफुल? द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस इज, फ्रेंड्स, वहाँ पे मेडिसिन जो है, पैरासीटामोल, जो बेसिक मेडिसिन है किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, वो गवर्नमेंट की तरफ से एवरी मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे जो सीनियर सिटीजन होते हैं अबोव द एज ऑफ 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, तो उनका पूरा जो मेडिसिन का खर्चा है, हॉस्पिटल का खर्चा है, वो गवर्नमेंट उठाती है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टिल डेथ। तो जब पब्लिक को पता है कि हमारी हेल्थ के लिए हमें अपनी जेब से खर्चा नहीं करना, तो वो चीटिंग क्यों करेंगे? बिजनेस वो आसानी से टैक्स पे करते हैं। वहाँ पे टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
तो जब मुझे पता है कि मेरी कंट्री में मुझे एजुकेशन जो मिलने वाला है, मेरी फैमिली का जो ध्यान रखने की चीज़ें हैं, हेल्थ की जो चीज़ें हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट मुझे लूटने वाली नहीं है, तो फिर मैं भी गवर्नमेंट में टैक्स की चोरी ना करूँ, मैं भी बिजनेस में जो कमाऊँ ईमानदारी से टैक्स पे करूँ, तो मेरा जो आउटलुक होगा, मेरा जो बिहेवियर होगा सोसाइटी के लिए, वहाँ पे वो पॉजिटिविटी क्रिएट करता है. तो दैट वॉज अवर थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज. अवर फोर्थ पॉइंट इज क्वालिटीज ऑफ लाइफ. Qualities of life refers to the state of general well-being of individuals and society. Now see, general well-being, आप कितने अच्छे से सोसाइटी में रहते हो. हाउ डू वी लिव, सी हाउ डू वी लिव एंड हाउ वी मेक लिविंग, ये दोनों में थोड़ा फर्क है. हम जिए कैसे और जीने के लिए कमाए कैसे. जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम काफ़ी सस्ते में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हो, तो अपना जो लाइफस्टाइल जीने का जो तरीका है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसमें जो चेंजेस दिखाई देते हैं, इट इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सी, अपने यहाँ पे मावा खाया, पान चबाया और थू कर दिया. इंग्लैंड में और अमेरिका में पब्लिक खुद ये नहीं करेगी. उनको खुद को ही नहीं अच्छा लगेगा कि हमारा रोड हम क्यों बिगाड़े, हम क्यों पब्लिक प्रॉपर्टी पे ये सब करके अपनी इमेज डाउन करें, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं करेगा. तो ये जो सोच है, अपने यहाँ पे हम देख लेते, अरे यार कोई देख कहाँ रहा है, चलना छोड़ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हर कोई कर रहा है, मेरे एक से क्या होना है. वहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा है, तो आपके एक के करने से बहुत फ़र्क पड़ रहा है. ये अपना एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होना चाहिए. तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है, तो हम खुद अपने आप को रोकते हैं कि नहीं, हमें ये चीज़ नहीं करनी, बिकॉज इट इज़ वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी. हम अपने पब्लिक गार्डन को क्यों बिगाड़े, हम अपने कॉलेज के कैंपस को क्यों बिगाड़े, इतना अच्छा सा मेंटेन किया होता है, तो क्यों बिगाड़े. अपने यहाँ पे उल्टा होता है, हम गुस्सा निकालते हैं कि कॉलेज ने फीस बहुत ज़्यादा लिया है, तो फेयरवेल के बाद बेंच तोड़ तोड़ के लेके जाओ, कैंपस में कुछ ना कुछ सत्यानाश करके निकलो, बहुत फीस लूटा है. जब वहाँ पे पता है कि कॉलेज ने फीस नहीं लिया है, तो कैंपस क्यों बिगाड़, बेंच काय को तोड़ने का. तो अपने आप अपनी जो लाइफस्टाइल है, जो थिंकिंग है, उसमें चेंज दिखाई देता है. दैट वॉज फोर्थ पॉइंट. आवर फिफ्थ पॉइंट इज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. सी, एफिशिएंसी का सबसे आसान मतलब जो होता है, दैट इज सी, एवरीवन इज वर्किंग, बट हाउ डू वी वर्क. कार्य क्षमता जो होता है, काम हर कोई करता है, आप काम कैसे करते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काम तो हर कोई करेगा. बीएमसी में जो स्वीपर होता है, सॉरी, वो भी झाड़ू मारता है रोड पे, बाम्बू झाड़ू लेके आवाज़ करता है. ओके, कचरा कम निकलता है, धूल ज़्यादा उड़ता है, आवाज़ ज़्यादा होता है. कोई बड़े मॉल में जाओ, स्वीपर वहाँ पे भी है, और वो मॉब लेके कर रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ धूल या कचरा हटेगा, आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगा. तो हाउ डू यू परफॉर्म योर वर्क, इट्स एफिशिएंसी. तो बिकॉज ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट दिखाई देता है. हाउ इट्स पॉसिबल. तो अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज कंट्रोल सिस्टम. अगर पोलियो अब किसी को नहीं है, अब अगर पोलियो किसी को नहीं है, राइट, मलेरिया के केस अगर कम होते हो, अभी का अगर हम सिचुएशन देखें, कोरोना, अगर कोरोना के केस अब कम हो रहे हो, डिजीज़ कंट्रोल में आ रहा हो, तो अपने आप अपना काम करने का जो कॉन्सेप्ट है, वर्कफोर्स बढ़ जाएगा, अपना वर्क बढ़ जाएगा, राइट. तो कंट्रोल ऑफ डिजीज़, फैमिली वेलफेयर सर्विस, ये मैं बोल चुका हूँ, टीबी की दवाई फ्री में. ओके, लोगों को समझाना, छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चा एक ही अच्छा. प्रोविज़न ऑफ न्यूट्रिशियस फूड. अगर आपको अभी का कोविड-19 का सिचुएशन पता हो, पिछले कुछ 4-5 महीनों से मोदी की तरफ से सभी को रेशन कार्ड के ऊपर
5 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है ताकि न्यूट्रिशन फूड मिले, तो कोविड से फाइट करना पुअर पीपल के लिए भी पॉसिबल हो पाए। प्रमोट्स हेल्दी लाइफस्टाइल। जब आप अच्छा खाना खाओगे तो हेल्दी रहोगे, तो बीमार कम पड़ोगे। जब बीमार कम पड़ोगे तो उतना टीबी कम होगा, उतना मलेरिया कम होगा, तो और गवर्नमेंट का खर्चा कम हो जाएगा। तो वो खर्चा जब कम होगा तो वो पैसा कहीं और काम हो पाएगा, तो विच लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। जब गवर्नमेंट के पास पैसा बचेगा तो वो और कोई डेवलपमेंट में काम लगेगा। अगर सुलभ शौचालय बनाए गए, अगर हर कोई नदी में, रोड पे, जंगल में, किधर भी जाके नहीं करता हो, अब शौचालय गांव गांव बन चुका है, हर एक के घर में पहुंच चुका है तो अपने आप वहाँ पे बीमारी का फैलना कम हो जाता है, राइट। तो इससे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और बढ़ती है कि लोग गांव में बीमार कम पड़ेंगे, तो गांव के लोग और काम करेंगे, एंड फाइनली इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट वाज आवर 5th point. Our 6th point is better resource utilization. Improvements in knowledge and skills of working population leads to better utilization of all other resources. फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी बात है। जब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको काम करने का तरीका आता है, तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं करेंगे। जब कंट्री में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी के पास काम करने का स्किल है, तो ज़्यादा रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। देखिए, जब हमें पता है कि एनवायरनमेंट के लिए सेव पेपर्स, सेव ट्रीज, तो फिर हम पेड़ नहीं काटें, हम पेपर्स का इस्तेमाल कम करें। इसलिए पिछले 1.5-2 साल से अब डिजिटल इंडिया की बात हो रही है कि अगर आप डिजिटल ज़्यादा यूज़ होते हैं, ओके, तो फिर हमें पेपर्स कम यूज़ करने पड़ेंगे। तो अब तो कोविड की वजह से मेजोरिटी चीज़ डिजिटल हो ही रही है, राइट, इवन आवर लेक्चर्स ऑल्सो। तो उतना कागज़ का इस्तेमाल कम होता है, तो हम कागज़ यूज़ करने के लिए पेड़ को काट के पहले वो सब मावा बना के कागज़ बनाते थे, तो वो सब अब कम हो रहा है स्लोली। तो जब आपके पास स्किल है, आप एजुकेटेड है, नॉलेज है कि हाउ टू ऑपरेट डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो फिर हम पेपर यूज़ पे कम आ जाएंगे, तो उतना अपना जो रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज कम हो जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी बात है। हम जहाँ से एजुकेशन लेते हैं, अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट उतना प्रॉपर है जो हमें गाइडलाइन दे पाए कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी स्कूल में बचपन से मुझे ये समझाया गया है कि बात में आप नोटबुक के पेज मत फाड़ दीजिए तो फिर मुझे कभी आदत आएगी ही नहीं। मेरी स्कूल में मुझे बचपन से समझाया गया था कि अगर कुछ गलती हुई है तो आप छोटा सा क्रॉस मार्क कर दीजिए, पेज मत फाड़िए, क्योंकि पेज के लिए हम पेड़ को काटते हैं तो एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। हमें ये बचपन से स्कूल में समझाया गया, तो फिर मुझे पेज फाड़ने की आदत है ही नहीं है। मतलब छोटी सी गलती हो गई, कुछ हो गया, गुस्सा भी आ गया, तो पेज नहीं फाड़ता हूँ मैं कभी, छोटा सा क्रॉस मार्क कर दूँ। तो अपने आप जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप समाज में कैसे बिहेव करोगे। ओके, अगर मेरी स्कूल की फ़ीस बहुत कम थी, इन माई लास्ट सेशन ऑल्सो आई टोल्ड यू कि मेरी स्कूल की फ़ीस 5th स्टैंडर्ड का 5 रुपीज़ महीने का, 6th स्टैंडर्ड का 6 रुपीज़ महीने का, और वो BMC स्कूल नहीं थी, इट वॉज गवर्नमेंट ग्रांटेड स्कूल। तो जब मुझे बहुत कम खर्चे में पढ़ाई मेरी हो चुकी है, तो अब मैं किसी को फीस में लूटता नहीं हूँ। देखिए, अगर कोई डॉक्टर छोटी सी बात के लिए आपसे 2000 रुपया लेता है, उसके दिमाग में ये है कि मैंने डॉक्टर बनने के लिए बहुत खर्चा किया, तो मैं वसूल कैसे करूँ, राइट, इसलिए वो पेशेंट को लूटेगा। पर अगर उसका स्कूल और कॉलेज का पढ़ाई बहुत कम खर्चे में हुआ है तो वो नहीं लूटेगा। जब मेरा खुद का एजुकेशन बहुत कम खर्चे में हुआ है तो मैं स्टूडेंट को ज़्यादा फीस लेकर क्यों लूटूँ। तो ये जो फंडा है, तो इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस चीज़ के लिए कि हम अपने रिसोर्सेज के लिए बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए कैसे इम्प्रूवाइज कर सकते हैं। दैट वाज आवर 6th पॉइंट। और 7th पॉइंट इज हायर एस्पिरेशन।
there is higher aspiration. With the improved education, people aspire for the better standard of living and work towards it. ये सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स। जब मेरा एजुकेशन अच्छे से हुआ है तो मुझे पता है कि मुझे कौन सी सिचुएशन में कैसे रहना है। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, योर लाइफ स्टाइल, योर वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ, योर चॉइस। आपकी चॉइस बहुत डिसेंट होनी चाहिए। जब मेरा एजुकेशन अच्छे से हुआ है तो मुझे पता है कि मुझे कब कौन से कपड़े कैसे पहनने चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए। ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ओके, अगर एक सिंपल सा लॉजिक कि अगर मैं 2000 रुपये का शर्ट पहन के बैठता हूँ पर यहाँ पे लिखा हो हाई आई एम सेक्सी, तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई, राइट। जो चॉइस हो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट का वो डिसेंट हो, ये मेरा एजुकेशन मेरे को सिखाएगा। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ नहीं कर सकता है, इसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ रोल प्ले नहीं कर सकता है। फॉर दैट पर्पज एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट कि आप कहाँ पे कितने डिसेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। एंड फॉर दैट पर्पज वी नीड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जितना एजुकेशन अच्छा उतना हायर एस्पिरेशंस हम बाहर लुकआउट में दे सकते हैं। दैट वाज आवर 7th पॉइंट। आवर 8th पॉइंट इज सोशल चेंजेस। सी स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जितना लोगों का पढ़ाई लिखाई ज़्यादा, रिड्यूस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उतना जाति भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये लोअर कास्ट, ये बैकवर्ड क्लास, ये शेड्यूल, ये सब में हम कोई रोल माइंड नहीं करता। फिर फ्रेंड्स एक बात सिंपल सी बता रहा हूँ। व्हेन आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, तो जो पहला पीरियड था हमारे स्कूल में वो प्रिंसिपल ने खुद ने लिया था। और मुझे आज भी वो पीरियड याद है जब उन्होंने ये कहा था कि ये स्कूल का लास्ट ईयर है आपका, नेक्स्ट ईयर से आप कॉलेज लाइफ में एंट्री मारोगे, तो अब आपका जो कॉन्सेप्ट हो, जो सोच वो ये होनी चाहिए कि आपके बाजू में जो फ्रेंड बैठा है उसे ये कभी मत पूछो कि तेरी कास्ट क्या है। अगर आपका और उसका नेचर मिक्स हो रहा है तो उसे अच्छे फ्रेंड बनाओ। डोंट आस्क हिम कि व्हाट इज योर कास्ट, तेरी कास्ट क्या है ये मत पूछो। जब आप फ्रेंड्स बनाते हो किसी को तो कास्ट नहीं, उसका नेचर, वो कितना हेल्पफुल है, कितना कोऑपरेटिव है, कितना आपको समझ सकता है, कितना आप उसको समझ सकते हो, ये सब जजमेंट है। उसकी कास्ट मत पूछो। फ्रेंड्स अगर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और कुछ मुझे पूछता है आपकी कास्ट कौन सी, क्या आप इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, अरे इससे क्या लेना देना है कि मेरी कास्ट कौन सी है। मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ाना मेरे एजुकेशन लेवल से डिपेंड होता है, नॉट डिपेंडिंग ऑन माई कास्ट। तो यहीं से सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव की जो बात आती है, वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है जब आपके पास एजुकेशन आ जाता है, विच प्रमोट्स सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी का मतलब जब समाज में हम इकट्ठा रहते हैं तो हम जाति के ऊपर, कास्ट क्रीड के ऊपर भेदभाव करके झगड़ा नहीं करेंगे फिर। ओके, एंड इट रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो फिर हम झगड़ा नहीं करेंगे इस बात को लेकर कि तेरी कास्ट में ऐसा होता है, ये मेरी कास्ट में ऐसा होता है, ये तो बात ही नहीं आएगी, बिकॉज वी आर एजुकेटेड। मैं जिनके पास एक इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ फ्रेंड्स, मेरे जो प्रोफेसर थे कॉलेज के, वो खुद लोअर कास्ट से थे। अगर मैं उनको पूछूं कि आपकी लोअर कास्ट से, मैं आपसे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ूँ, अरे ही इज PhD एट प्रेजेंट इन इकोनॉमिक्स, तो मैं कैसे ये बोल दूँ कि आप लोअर कास्ट को, मैं आपके पास नहीं पढ़ूँ। इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे इकोनॉमिक्स समझना है, उसमें उसका कास्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अभी जो अपने प्रेसिडेंट है ही इज फ्रॉम लोअर कास्ट, वो दलित है, करेक्ट। तो अगर हम ये सोचे मोदी ये बोले आप लोअर कास्ट से आपको प्रेसिडेंट नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनका जो सोशल बिहेवियर है, उनका जो एजुकेशन है, उनका जो पॉलिटिकल परफॉर्मेंस है, उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ है, वो मैटर करेगी, ना कि उनकी कास्ट मैटर करेगी। तो एजुकेशन से ये फ़ायदे होते हैं कि इट रिड्यूसेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट इनटू प्रमोट्स सोशल हार्मनी। सो फॉर ऑल दिस पर्पजेस anyhow we need education, best healthcare services and best family welfare policies and programs। तो अगर ये सब चीज़ें अच्छी है अपनी कंट्री में, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो फिर अपना ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल है।
तो हम ज़्यादा लंबा और अच्छा जी पाएंगे, अच्छा एजुकेशन ले पाएंगे और अपना जो लाइफ स्टाइल है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे. दैट वॉज आवर 8 पॉइंट सोशल चेंजेस. दैट्स इनफ फॉर दिस सेशन. Please take care of yourself. Soon I'll approach you again. Thank you so much.